How are you? I hope you all are fine. Today we will discuss the new chapter fractions. Here are the contents which we will discuss in this class. First is revision. Firstly, we will take the revision of the previous chapter money. Second is fractions. Third is types of fractions. Fourth is equivalent fractions. And fifth is reducing a fraction to its lowest term. Please note down in your notebook. बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। अब हम होमवर्क डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹400, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹336, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एज वी नो दैट कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, देन देयर विल बी लॉस। ₹400 cost price minus ₹336 selling price. So loss will be ₹64. Now we will find out loss percentage. Loss percentage is equal to loss divided by cost price multiplied by 100. Loss is equal to 64 divided by cost price 400 multiplied by 100. 20 से 20 कैंसिल कर लेंगे। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, 16 आएगा। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 16%। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹50,000, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹51,000, profit is equal to selling price minus cost price. As we know that when selling price is more than cost price, then there will be profit. ₹51,000 selling price minus 50,000 cost price. So profit is equal to ₹1,000. Now we will find out profit percentage. Profit percentage is equal to profit divided by cost price multiplied by 100. Profit is equal to ₹1,000. Cost price ₹50,000 multiplied by 100. 30 से 30 कैंसिल हो गई। 50 बन जा 50, 52 जा 100, 2 1 जा 2. So profit percentage is equal to 2%. Please note down in your notebook. Now the next question is cost price is equal to ₹100, selling price is equal to ₹110, profit is equal to selling price minus cost price. As we know that when selling price is more than cost price, then there will be profit. ₹110 selling price minus ₹100 cost price. So profit will be ₹10. Now we will find out profit percentage. Profit percentage is equal to profit divided by cost price multiplied by 100. Profit is equal to ₹10. Cost price is equal to ₹100 multiplied by 100. 100 को 100 से कैंसिल करेंगे, 1 आएगा। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10%. Profit is equal to 10%. Please note down in your notebook. Our next content is fraction. What is fraction? A part of the whole is called fraction. A fraction has two parts, numerator and denominator. Upper part is called numerator and lower part is called denominator. Here is rectangle. Rectangle has two parts. One is shaded and other is non-shaded. The shaded part is called selected parts and total equal parts are 2. So we will write 2 as the denominator and 1 shaded part
So we will write 1 as the numerator. Please write down in your notebook. अब हम फ्रैक्शन को और एग्जाम्पल द्वारा क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप कि यहाँ पर सर्किल है। सर्किल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 पार्ट शेडेड है और दूसरा पार्ट अनशेडेड है। जो शेडेड पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर लिखेंगे और टोटल पार्ट्स को हम डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। इस तरीके से फ्रैक्शन हुआ 1/2। सेकेंड एग्जाम्पल, सर्किल, और ये सर्किल जो है टोटल इसके 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4, और 1 पार्ट शेडेड है। जो शेडेड पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर के रूप में लिखेंगे और जो टोटल पार्ट्स हैं उसको हम डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। इस तरीके से फ्रैक्शन हुआ 1/4। अब एक और एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं कि यहाँ पर सर्किल बना हुआ है और सर्किल जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स जो है शेडेड है। तो जो शेडेड पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर मानेंगे और जो टोटल पार्ट्स हैं उसे हम डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। इस तरीके से फ्रैक्शन हुआ 3/4। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। Our next content is types of fractions. First is like fractions. Like fractions have the same denominator. For example, 2/5, 3/5, 7/5 and 9/5 etc. हम देखते हैं कि सब में डिनोमिनेटर एक जैसा है, यानी कि डिनोमिनेटर सब में 5 है, इसलिए हम इसे like fractions कहते हैं। Next is unlike fractions. Unlike fractions have different denominator. For example, 1/3, 2/7, 5/4 etc. इसमें हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर सब में अलग अलग है, इसलिए इसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शंस हैव द न्यूमरेटर always less than the denominator. For example, 3/4, 1/2 and 2/3 etc. हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर उससे ज्यादा होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3 जो है कम है और 4 ज्यादा है। उसी तरीके से 1/2, 1 कम है, 2 ज्यादा है, और थर्ड वाले में 2/3, 2 कम है, 3 ज्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर उससे ज्यादा होता है। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शंस. यूनिट फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शंस with 1 as the numerator. For example, 1/2, 1/3, 1/4 etc. यूनिट फ्रैक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैव द न्यूमरेटर always greater than the denominator. For example, 5/2, 8/3, 7/5 etc. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है और डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, 5/2 is equal to 2 write 1/2, 8/3 is equal to 2 write 2/3 etc. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 5/2 है, 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिक्स नंबर बन जाएगा 2 राइट 1/2। 8/3 को हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा
to write 2/3. Please note down in your notebook. हमारा नेक्स्ट कंटेंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ हमें 1/2 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर दिया हुआ है और न्यूमरेटर हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 की टेबल में 10 कौन से नंबर पर आता है? 2 की टेबल में 10 5 नंबर पर आता है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10। इस तरीके से न्यूमरेटर आ गया हमारा 5। नेक्स्ट पार्ट इज 7/11 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर हमें दिया हुआ है 21 और डिनोमिनेटर हमें फाइंड आउट करना है। तो 7 की टेबल में 21 कौन से नंबर पर आता है? 7 की टेबल में 21 3 नंबर पर आता है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आया, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 आया। तो इस तरीके से हमारा डिनोमिनेटर 33 आ गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 3/5 इज इक्वल टू 9 डिनोमिनेटर हमें मालूम नहीं है। तो हम 3 की टेबल में 9 कौन से नंबर पर आता है? 3 की टेबल में 9 3 नंबर पर आता है। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। इस तरीके से हमारा डिनोमिनेटर आ गया 15। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। And the last content is lowest term. Question is reduce to the lowest term. हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2/10। अब हमें ये सोचना है कि ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 10 भी आता है। हमारे पास 2 की टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 10 भी आता है। तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, और 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। तो लोएस्ट टर्म हुई 1/5। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14/21। हम अब ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 14 और 21 दोनों आते हैं। 7 की टेबल में 14 भी आता है और 21 भी आता है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इस तरीके से लोएस्ट टर्म हुई 2/3। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 15/20। हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 15 भी आता है और 20 भी आता है। हम देखते हैं कि 5 की टेबल में 15 भी आता है और 20 भी आता है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आया, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आया। इस तरीके से लोएस्ट टर्म हुई 3/4। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। Now it's time for your homework. Please note it down and do it in your mathematics copy. आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।